Hello students, how are you all? Today we are going to start our first chapter from standard 6 is sources of history. Start करते हैं. Early in the morning you receive a newspaper which makes you aware of the daily events and incidents. After some time these events become the past. We recall the dates and time when the same type of incidents happen. Photographs and detailed information given of the past event in the newspaper help us to know our history. यानी कि सुबह सुबह आप एक न्यूज़पेपर लेते हो और जो आपको रोज की घटनाओं से अवगत कराता है. कुछ समय बाद ये घटनाएं अतीत बन जाती है. अतीत मतलब कि पास्ट बन जाती है. हम तारीख और समय को याद करते हैं. जब उसी प्रकार की घटना होती है अखबार में अतीत की घटनाओं की दी गई तस्वीरें और विस्तृत जानकारी हमें अपना इतिहास जानने में मदद करती है. In the above painting, you can see a stamp, an idol, a seal, utensils, vessels, and various other tools. We come to know history through such sources. It is necessary to have a knowledge of the past and to know and understand the present situation. We know history of thousands of years from old and ancient buildings, forts, temples, step wells, and other sites. Let us understand this with the help of an activity. उपरोक्त पेंटिंग में आप एक मोहर, एक मूर्ति, एक बर्तन और अन्य विभिन्न उपकरण देख सकते हैं. हमें ऐसे स्रोतों के माध्यम से इतिहास का पता चलता है. भूतकाल का ज्ञान होना और वर्तमान स्थिति को जानना और समझना आवश्यक है. हम पुराने या प्राचीन इमारतों, किलों, मंदिरों, स्टेप कुएं और अन्य स्थलों से हजारों वर्ष का इतिहास जानते हैं. इसे एक गतिविधि यानी कि एक्टिविटी की मदद से समझते हैं. Make a scrapbook of old articles, paintings and photographs gathered from various newspaper and magazines in your school or town or village or library. यानी कि अपने स्कूल या शहर या फिर गांव के पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में अलग अलग अखबारों और पत्रिकाओं से एकत्र किए गए पुराने लेखों, चित्रों और तस्वीरों से एक स्क्रैप बुक बनानी है. When collecting articles, photographs and pictures of painting, we gathered historical information. You might even know some people who have a collection of old painting, photographs, coins, stamp and written information. This treasure of information was passed on to us by earlier generation. In December 2000, most of the newspapers had published various articles with photographs on the incident and event of the 20th century. which become famous as a Millennium Gallery. यानी कि चित्रों के लेख, तस्वीरों और चित्र एकत्र करते समय हम ऐतिहासिक जानकारी एकत्र करते हैं. आप कुछ ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिनके पास पुरानी पेंटिंग, तस्वीर, सिक्के, टिकटों और लिखित जानकारी का संग्रह है. सूचनाओं के इस खजाने को पूर्व की पीढ़ियों द्वारा हमारे पास भेजा गया था. दिसंबर 2000 में अधिकांश समाचार पत्र ने 20वीं शताब्दी की घटनाओं और घटनाओं पर तस्वीरों के साथ विभिन्न लेख प्रकाशित किए थे जो मिलेनियम गैलरी के रूप से प्रसिद्ध थे. Based on the information collected, give a brief account of any one personality. यानी कि एकत्रित जानकारी के आधार पर किसी एक व्यक्तित्व का संक्षिप्त विवरण दे. Give a brief summary of the period's architecture or an event from your scrapbook collection. आपने जो स्क्रैप बुक में जो कलेक्शन किया है उसमें कोई भी एक इवेंट की छोटी सी समरी देनी है. Narrate an incident or give information about honorable person of your village. आपके एक घटना का वर्णन करें या अपने गांव या शहर के किसी सम्मानित व्यक्ति के बारे में जानकारी दे. You are aware of the incident and personalities of the 20th century from articles and photographs. Since our history is very ancient, we are always eager to know what people were eating and wearing, in how they lived and in what type of houses and the activities that were a part of their daily life. Let us gather correct information from reliable sources.
यानी कि 20वीं सदी की घटनाओं और व्यक्तित्वों से लेखों और तस्वीरों से अवगत है। चूंकि हमारा इतिहास बहुत ही स्पष्ट है, हम हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि नेपोलियन क्या खा रहे थे, मतलब कि पहले जमाने के लोग क्या खा रहे थे और क्या पहन रहे थे, वो कैसे रह रहे थे और किस तरह के घरों में रह रहे थे। तो वो हम एक एक्टिविटी के जरिए देखेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि ताड़पत्र एंड भोजपत्र। वी कैन नो अबाउट द पास्ट थ्रू अ वेरियस सोर्सेज। हम पास्ट को बहुत सारे सोर्सेज के जरिए हम जान सकते हैं। द ताड़पत्र एंड भोजपत्र मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन मोस्टली इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट आर सम ऑफ देम। मतलब ताड़पत्र और भोजपत्र मोस्टली है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। भोजपत्र आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द ट्री नेम्ड भोज, यानी कि भोज नाम का एक ट्री है जिसके पेड़ की छाल में से ये भोजपत्र बनाया जाता है। Although most of the Brahmi manuscript have been destroyed by insects, मतलब ब्राह्मी लिपि के जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट थे वो ज्यादातर इंसेक्ट के द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए थे। Some of are still preserved in the temple, vihars, libraries and government museum. मतलब बाकी सारे जो थे वो तो इंसेक्ट ने डैमेज कर दिए थे, पर जो भी बचे थे उन्हें अच्छे से प्रिजर्व किया गया। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखा गया है। कहाँ? तो टेम्पल में, विहार्स में, लाइब्रेरीज में और गवर्नमेंट म्यूजियम में। Using these sources, we get a lots of information about king, administration and a public life of an ancient time. मतलब इन सारी चीजों को यूज करके हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है पास्ट के बारे में, जैसे कि किंग्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पहले के जमाने में जो पब्लिक लाइफ थी उसके बारे में। सेकंड है रिकॉर्ड्स इन अ स्टोन इंस्क्रिप्शन। इंक्रिप्शन यानी कि शिलालेख, पत्थर की शिलालेख। तो ये आप ये देख सकते हो पत्थर की शिलालेख का पिक्चर। थिंक, मेक अ लिस्ट ऑफ द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन गैदर अ इंफॉर्मेशन और अ इंसिडेंट और अ इवेंट ऑफ द प्रेजेंट डे, यानी कि उन स्रोतों की सूची बनाइए जहां से हमें वर्तमान की घटनाओं और घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्र कर सके। हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स अवेलेबल, यानी कि हम उपलब्ध स्रोतों से ऐतिहासिक जानकारी कैसे निकाल सकते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स मेन इंसिडेंट लाइक अचीवमेंट ऑफ किंग, writing of orders and a treaties with other state were carved on a stone or a metal plate. This metal plate and stone writing known as inscription exist even today and preserved in the archives such as the National Archives of दिल्ली। यानी कि पुराने समय में जो भी मेन इंसिडेंट्स थे, मतलब कि अचीवमेंट ऑफ किंग्स, मतलब किंग्स ने जो रजवाड़ा जीता है, जो भी कुछ जीता है किंग ने, उसके बारे में जान सकते हैं। फिर उनके दो या तीन राज्यों के बीच में जो करार हुआ था उनके बारे में जान सकते हैं। और ये सारी चीजें हैं वो पत्थर या फिर मेटल प्लेट्स में कोतर काम किया जाता था। These metal plates and stone writing known as inscription, मेटल प्लेट्स और स्टोन राइटिंग को हम इंस्क्रिप्शन कहेंगे, यानी कि शिलालेख कहेंगे। एग्जिस्ट इवन इन टुडे, वो अभी भी अस्तित्व में है। एंड प्रिजर्व्ड इन आर्चिव्स सच एज द नेशनल आर्चिव ऑफ दिल्ली, यानी कि वो अभी सुरक्षित है। कहाँ? तो नेशनल आर्चिव इन दिल्ली। नेशनल आर्चिव मतलब जहाँ पे जो एंशिएंट टाइम के जो चीजें होती है उनको अच्छे से सुरक्षित रखा जाता है, तो वो कहाँ है? दिल्ली में है। थर्ड पढ़ते हैं वेसल्स, ऑर्नामेंट एंड टूल्स। वेसल्स यानी कि जो घड़े और वो सब चीजें होती है वो। ऑर्नामेंट्स यानी कि घरेणे, जैसे कि ये हार देख रहे हैं आप। फिर टूल्स यानी कि जो छोटे बहुत, ये छुरी है, ये टायर है, वो सारे टूल्स है। ड्यूरिंग एक्सकवेशन यूटेंसिल्स, स्टोन टूल and the ancient ornament were found which help us to know the history of ancient time. Based on a picture 1.4, gather information on a similar object found from an excavation site near your residence. Just as the archaeologists do, we too can know the history of an ancient time from old coins, stone, inscription, painting on a metal plate. यानी कि खुदाई के दौरान बर्तन, पत्थर के औजार और प्राचीन आभूषण मिले हैं जो प्राचीन काल के इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि आपने तस्वीर 1.4 के आधार पर पुरातत्वविदों पर अपने निवास, यानी कि जहां हम रेजिडेंस करते हैं, जहां हम निवास करते हैं,
उसके पास उत्खनन स्थल से मिली सामान्य वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। हम भी प्राचीन काल के इतिहास को शिलालेख, चित्रों और धातुएं प्लेटों के रूप में जान सकते हैं। फिर आता है थिंग्स टू नो, मतलब कि ये चीजें हमें पता होनी चाहिए या फिर जानना चाहिए। द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, मतलब ऐसी कौन सी सोर्सेज है जिससे हम हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स है, पेंटिंग्स है, ऑर्नामेंट्स है, टॉयज है, कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस, भोजपत्र, मेटल प्लेट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, ट्रैवेलॉग एक्सेट्रा। इन सारी चीजों से हम हिस्ट्री को जान सकते हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शन, मतलब कि पत्थर की शिलालेख है। द राइटिंग्स वेर कार्व्ड ऑन द स्टोन, यानी कि पत्थर पे जो कार्व किया, मतलब खुतरा गया है, कोतरा गया है और उस पे लिखा गया है। भोजपत्र, द बार्क ऑफ अ ट्री ऑन विच बुक्स वेर रिटन इन एंशियंट टाइम। जैसे कि मैंने आगे बताया कि भोजपत्र यानी कि भोज नाम के वृक्ष की छाल पे से बनाया जाता है, उसे कहते हैं भोजपत्र। कॉपर प्लेट्स, इंस्क्रिप्शन ऑन अ कॉपर और अ टिन, जो कॉपर और टिन पे किया जाता है वो। कार्बन डेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू नो द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम। हम एशियन टाइम को जानना है तो उसमें एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम चाहिए होता है, और उसको जानने के लिए कार्बन डेटिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट होती है, जिसे हम C14 भी कह सकते हैं। आर्चीव्स, यानी कि प्लेस विच स्टोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। आर्चीव्स यानी कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। फिर आते हैं एक्टिविटी पे। अरेंज एन एग्जीबिशन ऑफ अ वेरियस एंशियंट ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिमेन ऑफ अ हिस्टोरिकल सोर्सेज फ्रॉम योर हाउस, स्कूल, म्यूजियम एंड अदर इंस्टीट्यूट। यानी कि ऐसे कारण बताइए कि हमारे आसपास की पुरानी वस्तुएं इतिहास के स्रोतों के रूप में कैसे काम कर सकती है। राइट अ रिपोर्ट और अ रिकॉर्ड इन योर नोटबुक, मतलब आपको एक रिकॉर्ड लिखना है, रिपोर्ट करना है अपनी नोटबुक में। फिर आते हैं नेक्स्ट, गिव रीजन हाउ ओल्ड आइटम्स फ्रॉम अवर सराउंडिंग कैन सर्व एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। यानी कि अपने आजू बाजू की चीजें हमें हिस्ट्री जानने में कैसे मदद कर सकती है। विच सोर्सेज विल यू यूज टू नो 100 years ओल्ड हिस्ट्री, मतलब 100 साल पुरानी अगर हमें इतिहास जानना है तो किन स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। How it is possible to get a historical information from a people like a storyteller, chronologist और travelers। storyteller, chronologist और traveler से हम हिस्ट्री कैसे जान सकते हैं।